सो गाइज फाइनली हम जो गुडविन ब्रदर और चेतन ब्रदर का हॉस्टल है वहाँ से निकल चुके हैं शिवगिरी से। और अब हम जा रहे हैं रामेश्वरम की तरफ, जिनका नाम स्टार्ट होता है महादेव राम के नाम से। सो भाई वहाँ की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, स्टोरी भी आपको बताएंगे और सारी चीज़ें आपको वहाँ की जगह के बारे में समझाएंगे, क्योंकि हम अभी एक ऐसे आदमी के पास जाने वाले हैं जो वहाँ का मतलब उस स्टेट का लोकल है, और मे बी दैट गाय विल होस्ट अस, वो हमको होस्ट भी करेगा। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट ट्रेन कन्याकुमारी तक की मिलती थी, बट जो कन्याकुमारी का रूट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और हिचैकिंग, लाइक वी वांट टू डू हिचैकिंग, सो लाइक वी आर थिंकिंग फॉर दैट ओनली। So what we did, like we booked a ticket from there to Madurai. So if we will reach on Madurai, then we will decide like we have to stay there with the host. Like we have to stay with the host to get the knowledge about that area, like what to do, what not to do, what are the places, what all are the story about the places. That is the thing. Okay. But also we are thinking to do hitchhiking from Madurai direct to Rameshwaram. I don't know whether it will be possible or not, but we will see. Like we wanted to do hitchhiking from there only. So there is main reason, like people really they don't understand our language. They don't even understand Hindi or English. Like you have to know Malayalam, Tamil or Telugu, that languages. So it is good for them. Like for if we are from North India, it is so difficult for us, or it is so difficult for them to understand us, or it is for so difficult for us to understand them. So no, the people are nice. It does not mean like if we cannot understand them they are bad people and they are not willing to help. But the message, the thing, like we are communicating with each other, like we are not like getting. So कोई बात नहीं भाई, भी पटड़ी पे बैठे हुए पीछे देख लो। और भाई यहाँ पे हम करने आए थे अपना 1 नंबर 2 नंबर और भाई वहाँ पे देख लो, वहाँ पे उस साइड स्टेशन है, वहाँ पे रेल आएगी। सो भाई अभी कितना टाइम हो चुका है? 1 बज गया। नाउ इज़ 1 o'clock, सो द ट्रेन विल बी ऑन 6:50 like that only. So like we are making a content, good content, and trying to share everything. Like we did not get so much time to upload the video and to tell what's going on in the journey. So sorry for that. एंड भाई मैं सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा, यू नो क्यों मैं इंग्लिश में इतना बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ। तो भाई बहुत सारे अपने जो नए भाई लोग जुड़े हैं जो यहाँ से वर्काला से है, दे पीपल आर फ्रॉम वर्काला, दे पीपल आर फ्रॉम लाइक साउथ इंडिया, सो दे पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट मच हिंदी, दे डू अंडरस्टैंड दैट मच हिंदी, बट इट इज़ लाइक so good, like if I will speak in English, like if they will watch my video, Mr. Goodwin Joseph and Mr. Chetan, Mr. Ram, Mr. Gokul Krishna, Mr. Anthony, and that girl Ayushi, I don't know her name. So we have made a lot of people, like they are so crazy people, and like they are like so helpful, they are so sportive, they are like people who understand other people vibes, they understand your thoughts, like they motivate you so much, they give you so much good feedback to go ahead in your life. So it is like so precious moment for me to be in Varkala, especially to meet all those people just because of Mr. Goodwin. So like I think like Goodwin is a god for me. Like whatever I have faced, whatever I have gone through, these things I am telling just because of that only. Because in this pandemic nobody is even willing to like host, but that guy is like making sure like if we will not feel anything bad, you know, like if you eat that thing, like. And extremely sorry to Mr. Goodwin brother, like he wanted us to visit his family but we could not do that. Maybe it's like I am like feeling so extremely sorry for that, but Goodwin brother, once I am going to meet mom and dad and sister and everyone, you know. So you know I have this desire, and sorry, like I could not able to walk that time, and that was so early. You told me like we have to go 7 a.m. and
I slept almost 4-5 a.m. that night. So I really feel sad for that, and I also feel sad like Mr. Chetan. He said like I only said like if I can do something for him. Like he said like okay, like if you know like if you can plant this aloe vera in there. Like I could not even do that. So there are some things like which making me so sad, but yeah, if it is like that, it should be like that. It happens like that. So no regret according to you all guys, you know. So मिलते हैं अभी next destination पे. We'll see you in Madurai and we'll try hitchhike or we'll try get a new transportation from there to Rameshwaram, because I want to touch that sand on my forehead and wanna feel that thing, you know. Jai Shri Mahakal, Har Har Mahadev. I've been flying from town to town, from London to भाई फीडबैक थोड़ा एक नंबर एक नंबर 5 ऑफ 5 6 भी दे दूंगा मैं वो खाने 150 का। और प्राइस के बारे में अभी प्राइस के बारे प्राइस भाई इतना कम है, हमारे वहाँ हरियाणा में 12 रुपये का 15 रुपये का समोसा मिलता है, 10 का भी नहीं मिलता है। यहाँ पर 8 रुपये का समोसा, और भाई 8 रुपये की आप देख रहे हो, ये यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये 8 रुपये की ये, और मतलब टेस्ट पेट भर गया भाई। 10 रुपये की चाय 40 रुपये में हमने दोनों वाला खा लिया, 2 प्रवीण खा लिए, 2 मैं खाना रहा हूँ, मैंने खा लिए, प्रवीण ने खा लिए, एक नंबर का। So finally we are at Madurai railway station, sitting outside just having something for the breakfast. This is the Madurai railway station in front of you all. That side. So guys, finally हम मदुरै रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कोई अगर होस्ट मिलता है तो। एक भाई से बात हुई है, देखते हैं उनसे कम्युनिकेशन हो पाती है तो, वरना हम यहाँ से सीधा श्री रामेश्वरम राम के जो जगह है वहाँ पे निकलते हैं और देखते हैं गाइस कितनी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रेल में 3 घंटे का रास्ता है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 175 किलोमीटर कुछ दूर है। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहे, चलते हैं रामेश्वरम और करते हैं वहाँ के दर्शन, आप खुद ही देख लीजिए। लेट्स गो। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैठे हुए हैं और भाई यहाँ बैठे बैठे कुछ खा रहे थे। इतनी देर में एक अंकल आए हमारे पास में जो कि ऑटो चलाते हैं और अपने आप ही वो अपनी लैंग्वेज में कुछ पूछने लगे हमसे। उनके फ़ोन में कोई दिक्कत हो रही थी कि किसी फ्रेंड ने उनका रमी वगैरह खेल के उनके अकाउंट से मतलब कनेक्ट कर दिया, उनके पैसे वगैरह कट रहे थे। और भाई ये पीछे उनका ऑटो है, हाय करो भाई। और ये अंकल बैठे हुए हैं, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय। क्या बहुत अच्छे आदमी है यार, और भाई दिल खुश हो गया अंकल से मिलके, क्योंकि देखो इतनी लैंग्वेज तो नहीं समझ पा रहे हम, बट जितना ये अपने इमोशन से एक्सप्रेशन से हमको चीज़ें समझा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश तोड़ के तमिल तोड़ के मरोड़ के, भाई बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद ये पहले बंदे जो हमसे मिले हैं और भाई जिस तरीके से हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है यार। और ऐसे ही यार, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दिल खुश हुआ।
लोगों से मिलके यार, खुद मतलब बंदा आके बात कर रहा है और पूछ रहा है, और दुकान वालों से भी बात की, मतलब पूरे हिंदी समझते हैं और मतलब हेल्प भी करते हैं. दे आर हेल्पफुल पीपल एंड यू नो दे आर लाइक सपोर्टिंग अस. So it is very nice. Like I'm feeling so good to be in Tamil Nadu, and it's a good place. So must visit there. No worry about anything. It's our country. So this is the uniqueness of our country, and this is very beautiful. All India is very beautiful. All Indian people, whether they are from any part of the world, all people are beautiful. If you have a positive vibes, if you have a positive thoughts, definitely you will meet those people. I'm not saying like there are not bad people. It's up to you. Like, so be on this vlog. We will like show you everything. We're still waiting some host. हम अपने होस्ट का मतलब 10-15 रिक्वेस्ट भेजी है मैंने. एक ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है, बट उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी उससे बात भी नहीं हो पा रही है. तो थोड़ा देर वेट करते हैं, नहीं तो भाई यहाँ से सीधा ही चेकिंग स्टार्ट करेंगे. ये रोड सीधा पीछे रामेश्वरम जा रहा है. ये जो वाला रोड है ये सीधा रामेश्वरम ही जा रहा है भाई. तो मिलते आगे, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव. सो दोस्तों, भाई से बात हो चुकी है अपनी, और भाई की आज की ड्यूटी है, और भाई वो अभी जॉब पे है, और जो बगीरा भाई है जो हमें मदुरई में होस्ट करने वाले हैं. बट उनका जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं फॉर्म में, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमको पिकअप कर सके. बट उन्होंने हमें 2-3 जगह सजेस्ट की है, हम वहाँ पे घूम लेते हैं. फिर इनका ऑफिस नियर बाई है, वहीं पे हमको मिल जाएंगे वो, और वहीं से हमको पिकअप कर लेंगे. और फिर भाई दिखाते हैं भाई उनके फार्म को, और उनसे मिलवाते हैं आपको. ये भी हमको काउच सर्फिंग से मिले हैं. हमारे सेकंड होस्ट है आफ्टर गुडविन. थैंक यू गुडविन, चेतन, Ram, Anthony, Gokul, everyone who I have met there. And right now I'm in Madurai, so we are going to explore Meenakshi temple. Then there is something another place which is regarding Gandhi ji, and we will visit that place, and then we will go to Mr. Bagheera farmhouse. Maybe we are going to do the volunteering there for 1 week. Don't know what will happen. So after that we will be in Rameshwaram. Okay. सो गाइस, दिखाते हैं आपको यहाँ का मदुरई का फेवरेट और मदुरई का फेमस टेंपल मीनाक्षी टेंपल. सो लेट्स गो. तो भाई लोगों, रेलवे स्टेशन से निकल के हमने लेफ़्ट ले लिया है, बिल्कुल उसके सामने से एग्ज़िट होके लेफ़्ट ले लिया है. और ये सीधा जो मार्केट देख रहे हो मदुरई की है, तमिलनाडु में. और यहाँ पे बहुत फेमस मीनाक्षी टेंपल है, वहाँ पे अभी हम जा रहे हैं. आप मार्केट देख लीजिए और रास्ता देख लीजिए. तो भाई वहाँ से जहाँ ऑटो घूम रहा है वहाँ से हमने ले लिया है लेफ़्ट. और ये ऐसी कुछ मार्केट आप देख लो. मदुरई तमिलनाडु मीनाक्षी टेंपल इज़ वेरी फेमस टेंपल, एंड आवर होस्ट इन मिस्टर बगीरा, ही टोल्ड अस टू विजिट दिस टेंपल. सो वीडियो इज़ नॉट अलाउड इन द टेंपल, सो वी आर लाइक टेकिंग एंड द शॉट्स, वी आर कैप्चरिंग इट फ्रॉम outside. And we will try to tell you the story also. Okay, so see, this is the village, West Masi Street, Madurai, Tamil Nadu. So from there we have to take right, and the temple will be right there. This temple opens at 9 a.m. in morning time. So now is 8 a.m. So it will take some time. Like once we will reach there, we will still have some time to like arrange all these things, to put our bags in the lockers, and not to carry any kind of stuff which is not allowed in temple. So let's be in this vlog and enjoy watching Madurai city and the famous Meenakshi temple. Let's go. The temple will be like this, I think. So, and that is a huge temple, you know. It is very famous temple in the Madurai.
Not in Madurai. I think in India it's very famous temple. Many people have aware about this temple or might be not familiar about this. ये टेम्पल जो है बहुत फेमस है भाई पूरे इंडिया का, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं भी पता होगा। बट अभी आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं और इसको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी आज देखते रहिए। थोड़ी सी दूरी है, 800 मीटर की दूरी है। सो लेट्स गो। सो ऐसे कुछ टेम्पल्स हैं भाई यहाँ पे मदुरई में। और जिस टेम्पल पे आज हम विज़िट करने जा रहे हैं अभी, मीनाक्षी टेम्पल, वो टेम्पल है भगवान शिव के बारे में और माता पार्वती के बारे में। और उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है जो हम अभी आपको आगे सुनाने वाले हैं। तब तक जो स्ट्रीट है यहाँ की, जो बड़ी बड़ी दुकान हैं, दोनों तरफ बहुत बड़ी मार्केट है यार, चौड़े चौड़े रोड है और पार्किंग का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। सो लेट्स गो। ये यहाँ का मदुरई का कोई चौराहा है और यहाँ पे भी जो हमने देखा मोस्टली टेम्पल्स है वे सारे इसी आकार में बनाए गए हैं, इसी शेप में बनाए गए हैं और अपने हिंदू भगवान जितने हैं उनके बारे में ही उनका वर्णन है। और ये मदुरई के चौराहे पे है। तो भाई अभी यहाँ से थोड़ी दूर हो रह गया, बस मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई लोगों, हर एक चौराहे पे, हर एक गली पे आपको यहाँ पे मदुरई में ऐसे मंदिर मिलेंगे, आप देख सकते हो। और इन पे सारे मोस्टली भगवानों के चित्र लगाए गए हैं। खुद शिव, शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, ऊपर भी बहुत सारे भगवानों के फ़ोटो लगाए गए हैं। तो ऐसे ऐसे मंदिर आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। और अभी हम मीनाक्षी टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऐसी कुछ स्ट्रीट है और स्ट्रीट का नाम है, सो लोगों देख लीजिए, ये है मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का। और ये तमिलनाडु के राज्य में पड़ता है। ये भगवान बोला जाता, भगवान शिव यहाँ पे पार्वती जी से विवाह करने के लिए इस स्थान पे आए थे। और पार्वती माँ और शिव के लिए ही ये टेम्पल जाना जाता है। आप पूरा ये हर एक पे मूर्ति ही मूर्तियाँ बनी दिखेंगी, आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरा देख सकते हैं। पूरा मूर्तियों से ही ये भरा पड़ा है पूरा। अभी चलते हैं अंदर टेम्पल में और चल के विज़िट करेंगे, तो बने रहे। No, I ain't ever coming down.
है।